हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ कोटेशंस। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड प्रीमियम, जब हमारा कोटेशन होता है तो ब्रोकर्स में कोट करेंसीज इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन देम इन द फॉरवर्ड मार्केट। एग्जांपल, इफ यूएसडी बाय INR is 36.3500 and broker says dollar is at 3% premium in 3 months forward market, the outright forward can take place and rate can be found by using the formula. So if the broker said the dollar is at 3% annualized premium, then the premium would be 3% divided by 12. So accordingly, the discounts would be calculated. So in terms of basis points or swap rates or forward margin, forward rate may be the same as spot rate, but generally the currency becomes costlier or cheaper. The difference is called swap points or forward margin. So a basis point is one out of 100 of 1%, right? So basis point is always 1%. Suppose a broker at New York quote for French francs FF by USD is equal to dollar 0.2112144 FF. 30 days forward discounts 100 basis points and 60 days forward discount 20 basis points, and for German mark DM USD 0.4860 by DM. So 30 days forward premium basis 120 points and 60 days forward premium 160 basis points. So अगर ये example है तो for direct rates premium has to be added to the spot rate and discount has to be subtracted from the spot rate. Then for indirect quotes reverse is true. So we need to subtract from the spot rate and we need to add from the spot rate. डिस्काउंट प्रीमियम को ऐड करना एंड डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है, वाइस वर्सा। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट है 30 डेज स्वैप रेट बाय फॉरवर्ड मार्जिन है, 60 डेज स्वैप रेट बाय फॉरवर्ड मार्जिन एंड 30 डेज फॉरवर्ड रेट एंड 60 डेज फॉरवर्ड रेट है। So we have an spot exchange rate dollar 0.2144 FF. So our swap would be minus 100 because we need to deduct it from our 30 day swap rate, and then 60 day swap rate में भी हमारा जो margin है वो minus होगा. So our cost would be 30 days forward rate would be 0.2044 because 120 points has been deducted. And 60 days में जब आप देखोगे फॉरवर्ड रेट में 0.2124 FF होगा एज इट इज, ठीक है। सो जब फॉरवर्ड मार्जिन की बात करते हैं तो 30 डेज में 100 पॉइंट माइनस होंगे, 60 डेज में 20 पॉइंट माइनस होंगे और 30 डेज में 100 पॉइंट यहाँ पे ऐड होंगे माइनस होंगे, ठीक है। एंड फॉरवर्ड में 60 डेज के वो एज यूजुअल जैसा है वैसा चलेगा। तो सेम गोज विद दी DM. So 0.480 by DM is equal to 30 days forward मार्जिन जो है वो 100 ऐड होगा, 60 डेज में 160 ऐड होगा एंड 30 डेज में वो हम लोग टोटल 4980 दिखाएंगे एंड 60 डेज फॉरवर्ड रेट के बाद 5020। सो 30 डेज फॉरवर्ड रेट 4.4980 एंड 60 डेज में 0.5020. So in terms of A minus B, or where A and B are numbers. So when forward or bid ask quotes are given in the format USD INR is equal to 47.8525 by 9775, 1 month 50 by 150 and 2 months 200 by 300, और दूसरे तरीके से भी हम ले सकते हैं वो। सो USD by INR is equal to 47.8525, 1 month goes to 50 to 150 और 50 minus 150 and 2 months 200 minus 300। इस तरीके से भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ द फर्स्ट फिगर इज स्मॉलर देन द सेकंड फिगर, then base currency is at the premium and the basis point have to be added to spot rate, right? So base currency अगर premium में है तो basis point हमें spot rate में add करना पड़ेगा, लेकिन अगर पहला फिगर जो है greater than second फिगर है then base currency at discount, ठीक है। So base currency जो है discount में होगा और basis point have to be deducted from the spot rate. Therefore you can see the forward point and tell if base currency is at discount or premium, राइट। स्पॉट एक्सचेंज में हम कैलकुलेट जब टैबुलर फॉर्म में देखेंगे तो इस तरीके से होगा, और जो बेस करेंसी है वो प्रीमियम होगा इन बोथ, सो वी नीड टू ऐड देम। कैलकुलेट करना है ब्रोकन पीरियड और फॉरवर्ड कोट्स को हमें। सो फॉरेक्स डीलर नॉर्मली कोट करेंगे फॉरवर्ड रेट एट रेगुलर इंटरवल
लाइक 1 मंथ और 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेक्स डीलर है वो कोट करेगा 1 वीक, 2 वीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग वो ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, these dealers quote forward rate on specific user date and is not an exact multiple of months. So such kind of forward quotes are known as broken period quotes. So 360 दिन है तो आपको वीक्स में वो कैलकुलेट करना है, मंथ्स में कैलकुलेट करना है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वैसे हम ब्रेकिंग करके उसको देंगे और उसी को ही हम ब्रोकन पीरियड कोड्स कहते हैं। ब्रोकन पीरियड रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। जैसे कि कॉर्पोरेट कस्टमर वांट्स टू बाय 1 लाख USD ऑन October 21st एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो उसको 1 लाख USD चाहिए और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है USD INR, स्पॉट में जाएगा, मैच्योरिटी डेट, बिड रेट और आस्क रेट। ठीक है, सो उसके बाद 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ्स ऐसे करते करते वो परचेज करते जाएगा। सो इंटरपोलेशन मेथड किस तरीके से यूज़ होता है? अब यहाँ पे फॉरवर्ड रेट पॉइंट एप्लीकेबल होता है 160 टू 175 और 145 से लेके 155 तक आस्क रेट होता है। अब 31 डेज की जब बात करते हैं 14 अक्टूबर टू 14 नवंबर, तो बिड स्प्रेड जो है 15 पॉइंट का होता है, सो 175 टू 160। और जब 7 डेज की बात करते हैं, 1 वीक की बात करते हैं, तो स्प्रेड रेट जो है बिड पॉइंट में 15/31 इंटू 7, दैट इज 3.89 होता है। सो द स्प्रेड एप्लीकेबल फॉर October 21st इज 160 प्लस 3.89 becomes 163.89। सो सिमिलरली 31 डेज के लिए भी हमारा जो स्प्रेड पॉइंट है वो 10 होगा, जैसे कि 155 टू 145, और 7 डेज के लिए भी सेम कैलकुलेशन होगा, बट 15 के बदले में हम यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे इन वीक्स। सो द स्प्रेड जो है एप्लीकेबल होगा 145 के लिए, दैट इज 2.26। सेम कैलकुलेशन गोज फॉर द 21 अक्टूबर। ठीक है, जो बेस पॉइंट होगा उसके हिसाब से हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। Speculation in currency market exists when someone buys a foreign currency not because they need to pay for an import, is investing in foreign business, but because they hope to sell the currency at higher rate in the future. तो अगर कोई स्पेकुलेट कर रहा है, कोई अगर परचेज कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो बाइंग करने के लिए है या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है, वो स्पेकुलेशंस के लिए भी हो सकता है और वो जो वैल्यू है फ्यूचर रेट में उसका बढ़ के वो सेल करने के लिए भी रख सकता होगा। ठीक है, सो ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सो स्पेकुलेटर बाय एंड सेल करेंसीज टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस ऑन द in the value of those currencies. Some level of speculation is good as it increases liquidity and provide easier access to foreign currencies. However, excessive speculation can disrupt international trade and economic development. Speculation is done both in spot as well as forward market. So speculation is nothing but gambling in a very layman's language. आप अंदाज लगाते हो कि प्राइस बढ़ेगा तो आई विल सेल एंड देन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट फॉरवर्ड में आई विल सेल, बट स्पॉट में आई विल बाय। ठीक है, तो स्पॉट में प्राइस कम है बट फॉरवर्ड में प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, $1 आज 30 रुपीज़ का है, कल को $1 40 रुपीज़ का होने के चांसेस है 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। सो आज $1 परचेस करो, $1 पे ₹10 का फ़ायदा होगा आपको, दैट इज स्पेकुलेशन। Arbitrage occurs when a currency trader takes advantage of different spread offered by a broker for a particular currency pair by making trades. So arbitrage कब होता है? जब अलग अलग स्प्रेड्स को और अलग अलग स्प्रेड्स के हम एडवांटेज लेते हैं और वो ब्रोकर्स हमें पर्टिकुलर करेंसी पे वो ट्रेड ऑफर करता है। Then different spread for a currency pair imply disparities between the bid and ask price। so different spread होगा करेंसी पेयर के लिए, जो disparities होगा between bid and ask। और करेंसी आर्बिट्रेज इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर को, जो अलग अलग ब्रोकर जो है उसका एडवांटेज लेता है डिस्पैरिटीज में। करेंसी आर्बिट्रेज में इन्वॉल्व होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अलग अलग कोटेशंस का, और जो मोमेंट है एक्सचेंज रेट में करेंसीज का वो करेंसी पेयर के साथ होता है।
फॉरेन ट्रेडर्स टिपिकली प्रैक्टिस टू करेंसी आर्बिट्रेज, जहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन स्प्रेड ऑफ टू करेंसीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ट्रेडर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं तीन करेंसी आर्बिट्रेज में, जिसको हम ऑलरेडी ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज कहते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर है, हाई स्पीड ट्रेडिंग सिस्टम है, लास्ट ट्रेडिंग जो होता है वो अलग अलग करेंसी पेयर कोड्स में होता है, और वो जो गैप होता है वो लकीली बहुत क्लोज होता है, और वो क्विकली बंद हो जाता है उसका जो गैप है वो। फॉरेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रेफर्स करता है कि जो ट्रेड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो फॉरेक्स मार्केट में फ्यूचर में होता है, एक स्पेसिफाइड डेट में होता है, और वो फिक्स होता है हमारे परचेज डेट का। ठीक है। और एक्सचेंज ट्रेड जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेलर मेड है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर। आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्डाइज होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज का, मैच्योरिटी पीरियड। और एक्सचेंज ट्रेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर सकता है इजीली, जो पॉसिबल है इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो क्लियरिंग हाउस है एसोसिएटेड है एक्सचेंज रेट्स के एक्सचेंज के थ्रू, वो काउंटर पार्टी रिस्क भी लेता है, और रिस्क जो है वो लॉस मेकिंग पार्टीज को डिलीवर नहीं करता ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड्स। देन ट्रेडर्स जो है वो उन्हें वो मार्जिन पे करना पड़ता है, और इनिशियल और डेली मार्जिन जो रहता है एक्सचेंज की तरफ से वो रिक्वायर्ड होता है, और सारे ट्रेडर्स जो है वो मार्जिन पे करते हैं। करेंसी ऑप्शंस में फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शन होता है, कॉमनली शॉर्ट एंड टू जस्ट एफएक्स ऑप्शन और करेंसी ऑप्शन, जहाँ पे डेरिवेटिव जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ओनर्स को एक राइट देता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि वो पैसा एक्सचेंज करे डिनोमिनेटेड करेंसी से दूसरी करेंसी में। ठीक है। और वो प्री एग्रीड एक्सचेंज रेट होता है ऑन अ स्पेसिफिक डेट। और जो ऑप्शंस होता है वो राइट देता है टू बाय, इज नोन एज कॉल। जब हम लोग बाई करते हैं तो यहाँ पे कॉल होता है, और जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे पुट होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आस्क एंड बिड की बात की थी, तो यहाँ पे भी कुछ लॉजिक लगेगा, और जैसे वहाँ लॉजिक है वैसे यहाँ पे भी एक लॉजिक है कि जब आपको बाय करना है, आप सामने से जाते हो तो यू आर टेकिंग अ कॉल, लेकिन आपको सेल करना है तो आप रख देते हो एक जगह में कि मुझे ये सेल करना है। सो व्हेन यू कॉल इट यू आर बाइंग इट, व्हेन यू पुटिंग इट that is put, when you are selling it, depending on the contract term। ऑप्शन जो है एक्सरसाइज होता है और कोई भी डेट में ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, और एक्सरसाइजेबल है फाइनल और एक्सपायरेशन डेट में, कवर करता है कुछ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर कीजिए। शेयर नॉलेज, शेयर द वर्ल्ड। एंड पैंडमिक फिर से सेकेंड फेज में आ रहा है, तो घर से बाहर ना निकले, कोशिश कीजिए जो भी आपके कामकाज है वो ऑनलाइन हो, और फिज़िकली अगर जाना हो तो प्रिकॉशंस लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी या।